Good morning, sir. हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गैलेक्सी A50 पे मना किया है कि नाम लिखो तो हाँ 7CCC 520 अभी तक लिखा हुआ है। फोन होगा तो लगा देगा 50,000 तक। नाम उसको लिख देना चाहिए ना, फिर पता नहीं कोई यहाँ का लड़का है बाहर का कोई ये क्या पता। आप लोग बताया कि अपना आप लोग नाम डाल दिए मोबाइल में, तो क्यों नहीं डाल रहे हैं नाम रोल नंबर? क्लास बोल दीजिए सर। आ जाता हूँ 27 लड़के ही जाएंगे। रिकॉर्डिंग ऑन कर दिए हैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया ऑन कर दिए। शॉर्ट में कर देंगे, नहीं होगा तो शॉर्ट में कर देंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? जी सर, ठीक है सर। Morning, sir. मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग तुम इसको उधर रखोगी, इसको उसको और नहीं भूलेगा। दीपम सिंह कोई नाम हो? ये इतना चाहिए और ये चाहिए, बस इससे हो जाएगा मेरा काम। इसको हटा देते हैं, साइड में इधर कर देते हैं। हेलो। यस सर। हाँ, दिस इज द सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा. Its important feature is presence of odontoid process are dense, and second one is thick and strong lamina. Third one is bifid spine. First one is presence of odontoid process are dense. Second one is thick and strong lamina, and third is bifid spine. Spine. ओके, अब आइए डेंस पर। इससे क्या होगा? आवाज ज्यादा अच्छे जाइए। सर आवाज क्लियर आ रहा है सर। यस यस, राइट 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 राइट, हाँ ठीक है, एकदम क्लियर आ रहा है। एकदम क्लियर आ रहा है। ओके, कम ऑन टू द ओडोंटॉइड प्रोसेस. It is a conical projection, tooth-like projection. It starts from the center of the superior surface of the body of the second cervical vertebra. It is 1.5 centimeter long. This odontoid process, in previous class, I have told you that the body of the atlas means first cervical vertebra. During development, body of the first cervical vertebra fuses with the body of the second cervical vertebra, means axis.
So this odontoid process is body of the first cervical vertebra. It is important point. Note it. Odontoid process is the body of the first cervical vertebra situated in the middle of the superior surface of the body of the second cervical vertebra. Okay? इसको एक्सिस क्यों कहते हैं? ये कोनिकल प्रोजेक्शन है. This on this conical projection, atlas lies on the on second cervical vertebra. On this conical projection, atlas means first cervical vertebra, and the head rotates on this pivot, means dens. So it is called axis, means axis vertebra. Again, come on to the odontoid process. On the anterior surface of the odontoid process, there is a नहीं हाँ ना, तुम पेन रखो ना, तो लो हमारे पेन से ही लिखो, ये लो पेन. हाँ ठीक है. On the anterior surface of the odontoid process, there is a oval facet which articulates with the a facet present on the posterior surface of the anterior arc. ठीक है? Okay. So the anterior surface, the oval facet present on the anterior surface, it articulates with the facet present on the posterior surface of the anterior arc. This is a simple joint and pivot joint. And on the posterior surface of the odontoid process, there is a groove. You see this groove. There is a groove on the posterior surface of the odontoid process. इसके थ्रू पास करता है ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ एटलस. पिछले क्लास में मैंने बताया था ऑन द मीडियल साइड ऑफ द on the medial side of the lateral mass, means superior articular facet, there is a tubercle on both side. और यहाँ से transverse ligament attached होता है. तो this transverse ligament passes across this groove. The function of the transverse ligament of atlas is to fix and fit the odontoid process इन पोजीशन. ठीक है? तो अब देखिए क्या पोजीशन होगा ओडोंटॉइड प्रोसेस का. दिस इज द पोजीशन ऑफ डेंस. इसके पीछे ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ एटलस होता है जो कि अपनी जगह पर इसको फिट रखता है. इन बिटवीन द पोस्टीरियर फैसेट ऑफ डेंस एंड ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ एटलस देयर इज ए बर्सा जो कि फ्रिक्शन को रोकता है. तो ये ज्वाइंट हुआ पिवट ज्वाइंट. आगे भी साइनोवियल ज्वाइंट हुआ, पीछे भी साइनोवियल ज्वाइंट हुआ. और ये कौन सा ज्वाइंट बनाता है ऑफ साइनोवियल वैरायटी? पिवट ज्वाइंट बनाता है. ठीक है? अब कम ऑन टू द अटैचमेंट ऑन द ओडोंटॉइड प्रोसेस. द टिप ऑफ द एपेक्स, from tip of the apex of odontoid process, apical ligament is attached. This apical ligament goes upwards and attached to the anterior margin of the foramen magnum. Anterior margin of the foramen magnum. And from the side of the odontoid process, just below the apex, from the side of the odontoid process, there is alar ligament on both sides. There is alar ligaments on both sides. ये alar ligament निकलता है और ये जा करके अटैच्ड होता है. जो ये कंडाइलर प्रोसेस है ऑफ ऑक्सीपिटल बोन, इसके मीडियल साइड में ट्यूबरकल होता है. ये दोनों एलर लिगामेंट यहां पर जाकर के अटैच्ड हो जाता है. ओके, means this alar ligament goes upwards
and attached to the tubercle present on the medial side of the condyle of the occipital bone. पिछले क्लास में मैंने बताया था कि there is transverse axis and vertical axis. On transverse axis, it first cervical vertebra moves. This gives nodding movement on transverse axis. Nodding movements means yes movement, yes movement, due to the absence of the spinous process. And on the second vertebra, there is vertical axis. There is vertical axis. उस vertical axis पर second vertebra on this that vertical axis, it gives permission of lateral flexion of neck. Lateral flexion of neck means there is no movement. जैसे no बोलते हैं हम लोग तो ऐसे गर्दन हिलाते हैं, right and left. This is no movement. तो क्या हुआ? There is yes movement on the first cervical vertebra. There is no movement on the second cervical vertebra. जो yes movement होता है, nodding movement होता है on the transverse axis, और जो no movement होता है that is on vertical axis. तो this Ehler ligament restricts the excessive movement, excessive lateral movement and flexion. बात समझ में आई? जो Ehler ligament साइड से गया, ये this Ehler ligament prevents the excessive movement of lateral flexion excessive lateral movement and flexion movement. तो flexion कैसे होगा? ये flexion हुआ और ये lateral movement हुआ. ओके, अब आइए, तो ये ओडोंटॉइड इसमें हाँ, दिस ओडोंटॉइड प्रोसेस जिस साइड में रहता है, इसके पीछे रहता है स्पाइनस प्रोसेस. Means odontoid process facing anteriorly and spinous process facing posteriorly. Okay, common to the body. तो जो odontoid process होता है, it is situated on the body of the second cervical vertebra. इसके superior surface पर दो articular facet हुआ, right and left. तो जो ये जो आर्टिकुलर फैसेट हुआ, इट इज कॉन्वेक्स नियर टू सर्कुलर, और ये आर्टिकुलेट करता है विद द इंफीरियर फैसेट ऑफ फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा. पिछली बार जो मैंने बताया था, जो एटलस पर, इसमें मैंने ये बताया था कि जो सुपीरियर फैसेट होता है इट इज लाइक किडनी शेप, और जो नीचे का इंफीरियर फैसेट होता है इट इज कॉन्वेक्स एंड सर्कुलर. ठीक है, तो ये जो एक्सिस का जो सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट है, इट आर्टिकुलेट्स विद द इंफीरियर फैसेट ऑफ द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा. ओके, अब आप आइए, जो सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट है, अच्छा नीचे का ये हो गया, ये इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट. आई एम शोइंग यू द इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट. ये इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट आर्टिकुलेट्स विद द सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट ऑफ द थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा. तो जो सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट है, it is more interior in comparison to the lower articular facet. Listen this point. Superior articular facet is more interior in comparison to the lower inferior articular facet. कारण क्या है ये मैं बाद में बताऊंगा. ठीक है, अब इसके बाद आइए,
इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस पर, पेडिकल पर और लेमिना पर। कम ऑन टू द पेडिकल, जो बॉडी से जो स्टार्ट हुआ, दिस वन इज पेडिकल, दिस वन इज पेडिकल, और पेडिकल से जो सेंटर की तरफ गया, दिस इज सर थोड़ा कैमरा के पास कीजिए सर। और देखो दिखाई पड़ रहा है ये, और आगे कीजिए सर कैमरा के पास। देखो ये देखो, और आगे सर। और आगे ये देखो। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर, अब बताइए। ओके ओके। देन कम टू द पेडिकल, देन लेमिना। इसका लेमिना बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टाउट होता है, और ऐसा लेमिना किसी सर्वाइकल वर्टिब्रा में नहीं होता है, जो कि सेकंड में होता है। तो इट इज स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट इन कंपैरिजन टू अदर सर्वाइकल वर्टिब्रा। और ये सेंटर में गया एंड फॉर्म्स द स्पाइनस प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस इसका कैसा होता है, नीचे की तरफ ग्रूव्ड होता है और आगे की तरफ बाइफिड होता है। इट इज बाइफिड एंड ग्रूव्ड एट द इंफीरियर सरफेस। इंफीरियर सरफेस पर देखो, ये इंफीरियर सरफेस पर ये ग्रुप्ड हुआ और ये बाइफिड हो गया। इसके बाद आइए लेमिना पर। लेमिना पर क्या अटैच्ड होगा, लिगामेंटम फ्लेवम। लेमिना पर क्या अटैच्ड होगा, लिगामेंटम फ्लेवम। देन कम ऑन टू द स्पाइनस प्रोसेस। व्हाट्सएप पर मैंने कुछ फोटो भेजा है मसल्स का अटैचमेंट ऑन द सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा, वो मिला है? इन्हीं सबों को भेजे हैं, इन सबों को भेजे हैं व्हाट्सएप पर। अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। हाँ हेलो, नहीं मिला है सर फोटो। तो हमारे बैच वालों को बोलोगे? नहीं मिला। नहीं हम भेजे हैं, सुबह भेजे हैं सर सर हम भी तो आप ही के एमबीबीएस बैच वाला में ग्रुप में हैं, भेजिए सर, एमबीबीएस वाला ग्रुप में। एमबीबीएस वाला ग्रुप पर। अच्छा ठीक है। वो ग्रुप मेरे व्हाट्सएप पर नहीं है, वो मैं कर लेता हूँ और उस पर मैं भेज देता हूँ। ठीक है, कम टू द स्पाइनस प्रोसेस। ठीक है, स्पाइनस प्रोसेस के टिप पर लिगामेंटम न्यूकी अटैच्ड होता है। जो मैंने पहले बताया था कि लिगामेंटम न्यूकी अटैच्ड होता है एट द टिप ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस, और उसके साइड में, स्पाइनस प्रोसेस के साइड में इंफीरियर ऑब्लिक मसल का अटैचमेंट होता है। कौन सा? इंफीरियर ऑब्लिक मसल का अटैचमेंट होता है ऑन द लेटरल एस्पेक्ट। वो फोटो मैं भेज दूंगा, उसमें एकदम स्पष्ट है कहां मसल्स है। ठीक है ना, अब वहां पे नाम भी मैंने लिख दिया है। तो वो इंफीरियर ऑब्लिक हुआ ऑन द लेटरल एस्पेक्ट। अब पोस्टीरियर बॉर्डर पर, जो पोस्टीरियर बॉर्डर है, स्पाइन का जो पोस्टीरियर बॉर्डर है, वहां पे अटैच्ड होता है रेक्टस कैपिटिस पोस्टीरियर सुपीरियर। रेक्टस कैपिटिस पोस्टीरियर सुपीरियर। अगेन मैं फिर से बता रहा हूं, फिर से तुम लोग सुनो। टिप ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस, लिगामेंटम न्यूकी इज अटैच्ड। ओके, lateral side of the spinous process, inferior oblique muscle is attached, and lateral border of the spinous process जो बाइफिड हो गया है, वहां पे अटैच्ड होता है रेक्टस कैपिटिस पोस्टीरियर सुपीरियर, रेक्टस कैपिटिस पोस्टीरियर मेजर, रेक्टस कैपिटिस पोस्टीरियर मेजर। ओके, ये तीन मसल्स हुआ। कॉमन टू द ग्रूव which is situated at the inferior surface of the spinous process। ठीक है, यहां पे होता है, चार मसल्स होता है, सेमी स्पाइनलिस कैपिटिस, सेमी स्पाइनलिस सर्विसेस, स्पाइनलिस सर्विसेस, इंटर स्पाइनलिस एंड मल्टीफिडस। कौन कौन सा हुआ? सेमी स्पाइनलिस सर्विसेस, स्पाइनलिस सर्विसेस, इंटर स्पाइनलिस एंड मल्टीफिडस। इसमें एक मसल्स जो सेमी स्पाइनलिस सर्विसेस है, इट गोज अप टू द लेमिना। ये भी ग्रूव में ही होता है, लेकिन इट गोज अप टू द लेमिना। उस फिगर जो मैंने भेजा है उसमें बड़ा स्पष्ट है, जो कि लेमिना की तरफ गया हुआ है। तो ग्रूव में कौन कौन सा हुआ? सेमी स्पाइनलिस सर्विसेस, स्पाइनलिस सर्विसेस, इंटर स्पाइनलिस मतलब जो एक
दूसरे के स्पाइन से अटैच्ड होता है, तो इंटर स्पाइनलिस, एंड फोर्थ वन इज द मल्टीफिडस। ये मल्टीफिडस ऊपर से लेकर के ये नीचे सैक्रम तक जाता है, तो हर जगह मल्टीफिडस आएगा, याद रखिएगा। इंटर स्पाइनलिस आएगा और लिगामेंटम न्यूकी ये 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा तक आएगा। ओके, अब अच्छा, जो सेमी स्पाइनलिस सर्विसेज है ये ग्रुप में तो रहता ही है, इट गोज अप टू द लेमिना, लोअर बॉर्डर ऑफ द लेमिना, दोनों साइड में, हाँ दोनों साइड में हो गया ये। आइए कमान टू द ट्रांसवर्स प्रोसेस, कमान टू द ट्रांसवर्स प्रोसेस। इसका ट्रांसवर्स प्रोसेस छोटा होता है, फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम होता है। इसके फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम से एसेसरी वर्टिब्रल वेन पास करता है, एसेसरी वर्टिब्रल वेन पास करता है। वेरी रेयरली वर्टिब्रल आर्टरी होता है, नहीं नहीं इसमें नहीं, वो 7th में चला गया। इससे इसके फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम से क्या पास करेगा, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, क्या क्या पास करेगा सेकंड के फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम से? वर्टिब्रल आर्टरी, वर्टिब्रल वेन एंड सिंपैथेटिक नर्व, एंड सिंपैथेटिक नर्व। क्या क्या पास करेगा? वर्टिब्रल आर्टरी, वर्टिब्रल वेन, vertebral vein, sympathetic nerve. नर्व, सिंपैथेटिक नर्व मतलब सिंपैथेटिक फाइबर्स फ्रॉम द इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, सिंपैथेटिक नर्व पास करेगा। अब आ जाइए इसका ट्रांसवर्स प्रोसेस पर क्या क्या अटैचमेंट होता है। इसको मैंने ऐसे जो एनाटॉमिकल पोजीशन है वैसे मैंने रखा। तो ट्रांसवर्स प्रोसेस खत्म है। ट्रांसवर्स प्रोसेस पर ये इंटीरियर रूट हुआ, ये पोस्टीरियर रूट हुआ, ये लेटरल रूट हुआ। तो इंटीरियर रूट पर अटैच्ड होता है दिख स्प्लेनियस, नहीं रहा है सर। नहीं ये देखो सर ये दिख रहा है, इंटीरियर रूट पर अटैच्ड होता है स्केलिनस मीडियस, पोस्टीरियर रूट पर अटैच्ड होता है स्प्लेनियस सर्विसेस, और बीच वाले पर अटैच्ड होता है लिवेटर स्कैपुली। क्या क्या हुआ? इंटीरियर रूट पर क्या हुआ? स्केलिनस मीडियस, इसका ओरिजिन होता है। और जो पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर रूट पर अटैच्ड होता है स्प्लेनियस सर्विसेस, इसका इंसर्शन होता है। और बीच में ये जो ट्यूबरकल होता है, इस ट्यूबरकल के पास से मतलब ये लेटरल रूट हुआ, यहां से इस ओरिजिन होता है लिवेटर स्कैपुली का, लिवेटर स्कैपुली का। एक चीज मैं बता दूं, जो ये पोस्टीरियर नहीं क्या क्या बोलते हैं, यहां से, अच्छा यहाँ पे there are 4 ligaments which attach the second cervical vertebra to the skull bone. 4 ligaments. कौन कौन ligament होता है? One is the apical ligament, second one is the alar ligament, third one is the membrana tectoria, and fourth one is the cruciate ligament. जो ट्रांसवर्स लिगामेंट एटलस है, इट इज द पार्ट ऑफ द क्रूसिएट लिगामेंट। ये चारों लिगामेंट स्कल से अटैच्ड होता है और बीच में एटलस दैट एक्ट्स एज ए वाशर, दैट एक्ट्स एज ए वाशर। ओके, ये खत्म हो गया। अब आइए 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा पर। 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा वो दिखाया नहीं जा सकता है, वो नहीं मिला है। ओके, इसका उसमें 2-3 फीचर होता है जो कि इंपॉर्टेंट है। बाकी सब टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा की तरह ही फीचर होता है। तो उसमें क्या क्या फीचर होता है? तुम लोगों की किताब में 3 फीचर दिए हुए हैं। उसमें दिया हुआ है कि इंटीरियर रूट ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस, जो ट्रांसवर्स प्रोसेस मैंने बताया था, ट्रांसवर्स जो टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा मैंने बताया था, उसमें मैंने बताया था ट्रांसवर्स प्रोसेस में कि इंटीरियर रूट होता है, पोस्टीरियर रूट होता है, इंटीरियर ट्यूबरकल, कॉस्टो ट्रांसवर्स बार एंड पोस्टीरियर ट्यूबरकल। तो 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा में जो इंटीरियर रूट होता है, इट इज मोर प्रोमिनेंट एंड नोन एज कैरोटिड ट्यूबरकल। व्हाई कैरोटिड ट्यूबरकल? इसलिए कि कैरोटिड आर्टरी इस पर लाई करता है, कैरोटिड आर्टरी इस पर लाइट करता है, इसलिए सो इंटीरियर रूट इज आल्सो कॉल्ड कैरोटिड ट्यूबरकल।
तो कुछ नहीं बोल रहा है, दिख रहा है, तो बोला यहीं पर रखने के लिए, यहीं पर रखने के लिए। अच्छा, उसके बाद अब आ जाइए सेकंड पॉइंट, जो कास्टो ट्रांसवर्स बार है, दिख रहा है ना, जो कास्टो ट्रांसवर्स बार है, ये कास्टो ट्रांसवर्स बार वाइड होता है और कर्ड होता है, वाइड होता है और कर्ड होता है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या हुआ कि 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा में एंटीरियर ट्यूबरकल और पोस्टीरियर ट्यूबरकल सेम लेवल पर लाई करता है, एंटीरियर ट्यूबरकल और पोस्टीरियर ट्यूबरकल सेम लेवल पर लाई करता है, जबकि अदर सर्वाइकल वर्टिब्रा में जो पोस्टीरियर ट्यूबरकल है वो लोअर लेवल पर लाई करता है। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत? वो किताब से तुम लोग पढ़ लोगे, वो याद हो जाएगा। कॉमन टू द 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा, 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा इज आल्सो कॉल्ड वर्टिब्रा प्रोमिनेंस। इसका वर्टिब्रा प्रोमिनेंस इसलिए कहते हैं कि इसका स्पाइन थिक होता है, स्टाउट होता है और स्ट्रेट होता है, एंड यू कैन फील इट द स्पाइनस प्रोसेस पीछे सर्वाइकल रीजन में ये फील किया जा सकता है, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट होता है। सो इट इज कॉल्ड वर्टिब्रा प्रोमिनेंस। अब इसके अब आ जाइए क्या क्या अटैच्ड होता है स्पाइन पर। तो स्पाइन पर क्या क्या अटैच हुआ? लिगामेंटम न्यूकी होगा, इंटर स्पाइनलिस होगा, मल्टीफिडस होगा, ये 3 तो होना है। उसके अलावा इस स्प्लेनियस कैविटीज एंड स्पाइनलिस सर्विसेज, ये 5 हुआ। उसके बाद ट्रेपीजियस होगा, रोम्बॉइडियस माइनर होगा और सेरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर होगा। ये 8 मसल्स ये अटैच्ड होता है स्पाइन से, 8 मसल्स स्पाइन से अटैच्ड होता है। कॉमन टू द ट्रांसवर्स प्रोसेस। अब इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस पाइए, तो ये दोनों साइड में निकला हुआ है ट्रांसवर्स प्रोसेस। तो इस ट्रांसवर्स प्रोसेस में इसके 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा के, हेलो सुनाई पड़ रहा है ना? यस यस सर। हाँ यस सर। हाँ, तो इसका जो, इसमें खूब गौर से देखिएगा, मैं बढ़िया से दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा है और साइड में ये ट्रांसवर्स प्रोसेस निकला हुआ है। तो इस ट्रांसवर्स प्रोसेस में जो पोस्टीरियर रूट होता है और पोस्टीरियर ट्यूबरकल होता है, जो पोस्टीरियर रूट होता है वो बिग एंड प्रोमिनेंट होता है। ये देख लीजिए, एक यहां पर ये टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा है, ये 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा है, अगल बगल दोनों देख लीजिए, ठीक है। इसका पोस्टीरियर रूट ये हुआ, इसका पोस्टीरियर रूट ये हुआ। सो इट इज बिग एंड प्रोमिनेंट और पोस्टीरियर ट्यूबरकल होता है। और इसका जो इंटीरियर रूट है वो लंबा और पतला होता है, थिन एंड स्लेंडर, थिन एंड स्लेंडर, एकदम बिल्कुल स्पष्ट देख लीजिए। ये इंटीरियर रूट है, इट इज थिन एंड स्लेंडर। दिस वन इज द पोस्टीरियर रूट, इट इज बिग एंड प्रोमिनेंट एंड ends in a tubercle, ends in a tubercle, that is posterior tubercle. Common to the foramen transversarium. 7th में foramen transversarium एब्सेंट भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है। ओके, इट मे बी प्रेजेंट, इट मे बी एब्सेंट, इट मे बी डबल। और इस अगर प्रेजेंट है फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम, तो इसे क्या पास करेगा? एसेसरी वर्टिब्रल वेन, नॉट वर्टिब्रल आर्टरी। ये फिगर में वर्टिब्रल आर्टरी के फिगर में देखिएगा तो 7th फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम से नहीं पास करता है, वो इंटर करता है 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा के फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम से, और ये सीधे फर्स्ट तक चला जाता है और लेटरल मास के पीछे में जो ग्रूव होता है वहां पर जाकर के उसका थर्ड पार्ट लाई करता है। ओके, अब यहां पर अटैचमेंट आ जाइए। जो पोस्टीरियर ट्यूबरकल पर एक मसल होता है स्कैलिनस मीडियस, स्कैलिनस मीडियस पोस्टीरियर ट्यूबरकल पर, एंड अंडर सरफेस ऑफ द पोस्टीरियर ट्यूबरकल दैट इज लेवेटोरिस कोस्टेरम, लेवेटोरिस कोस्टेरम। तो पोस्टीरियर ट्यूबरकल पर कौन सा मसल हुआ? स्कैलिनस मीडियस। और अंडर सरफेस ऑफ द पोस्टीरियर ट्यूबरकल पर क्या होता है? लेवेटोरिस
कॉस्टेरम। बस यही हुआ 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा। और 40 मिनट हो गया है, देख लो तो। हाँ, 1 मिनट 11 सेकेंड और सुन लीजिए, ये पूरे वर्टिब्रल कॉलम में 4 कर्वेचर होता है। एक सर्वाइकल कर्वेचर, एक थोरेसिक कर्वेचर, एक लंबर कर्वेचर, एक ये क्या सैक्रल कर्वेचर। तो दो प्राइमरी होता है, 2 सेकेंडरी होता है। जो प्राइमरी होता है वो थोरेसिक होता है और सैक्रल होता है। ये प्राइमरी इसको क्यों कहते हैं? इट प्रेजेंट दीज बोथ कर्वेचर आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द बर्थ। और बाकी सर्वाइकल और लंबर ये जब बच्चा बड़ा होता है तब ये डेवलप करता है। सो इट इज कॉल्ड सेकेंडरी कर्वेचर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ओके, यस सर। समझ में आ गई बात? यस सर। यस सर समझ आ गया। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा मोबाइल पर। नेक्स्ट क्लास नहीं होगा ना फोटो भेज